کلام خدا سے آج جو ہم سیکھیں گے یہ یشیاء نبی کی کتاب 53 باب کی بیسکلی جو ان سے ہم سٹڈی کریں گے۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ جو یشیاء نبی کا 53 باب ہے یہ کلام خدا سے جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اس کو سیکھنے سے پہلے آج ہم اس کی جو سی ہے جو دیکھیں گے کہ جو مسیحی لوگ ہیں وہ اس یشیاء 53 باب کو کس طریقے سے مسیح کے دکھوں کے لیے جو ان سے استعمال کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اور جو یہودی ریبائز ہیں وہ اس کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ عمومی طور پر جو ہے یہ نہ ہی مسیحی کلیسیاؤں کے میں جو ہے اس کو جو ہے سکھایا جاتا ہے، اور انٹرسٹنگلی جو ان سے جو سیناگوگس ہیں، جو یہودی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ بھی اس کو جو ہے بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ ہم جو ان سے جب انسان جو ہے کسی چیز کے متعلق جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی جستجو جو ان سے وہ بڑھتی ہے، اور اس جستجو کو وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزلٹ جو ان سے وہ حاصل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج کے یہودی علماء ہیں، جو ماڈرن ریبائز ہیں، وہ مسیح کی دو آمدوں کو قبول نہیں کرتے۔ وہ بڑی اسٹرانگلی جو ان سے وہ مسیح کی دوسری آمد، جو کہ مسیح بن داؤد، جو کہ بادشاہت کے طور پر مسیحی لوگ جو ہے اسے آمد ثانی کے طور پر گردانتے ہیں۔ جو ماڈرن یہودی ریبائز ہیں وہ آبجیکٹ کرتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں یہ مسیح کی پہلی اور واحد آمد ٹھہرے گی۔ جب ہم تورا کا مطالعہ کرتے ہیں، پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں مسیح کی پہلی اور دوسری دونوں آمدوں کا ذکر ملتا ہے، اور نہ صرف دونوں آمدوں کا ذکر ملتا ہے بلکہ ان کے وقت کا بھی جو ان سے بیان کیا گیا ہے۔ انٹرسٹنگلی جو قدیم یہودی علماء ہیں، جو اینشینٹ ریبائز ہیں، وہ مسیح کی دو آمدوں کو بیان کرتے ہیں۔ جو ماڈرن ریبائز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی دو آمدیں نہیں ہیں بلکہ ایک ہی آمد ہے، جبکہ چند جو قدیم ریبائز ہیں وہ مسیح کی دونوں آمدوں کو جو ہے کلام خدا سے بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ آج جو سیکھیں گے وہ اس کا ابتدائیہ سیکھیں گے کہ یشیاء نبی کا 53واں باب کس طریقے سے مسیح یا بنی اسرائیل یا دونوں کو جو ان سے کلام خدا سے بیان کرتا ہے۔ اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن جو ریبائز ہیں وہ مسیح کی دو آمدوں کو نہیں قبول کرتے، جبکہ قدیم ریبائز جو ان سے ہیں وہ مسیح کی دو آمدوں کو بیان کرتے ہیں۔ کہاں بیان کرتے ہیں ہم ان حوالوں کو دیکھیں گے، کیونکہ محض کہہ دینا کہ وہ بیان کرتے ہیں اور حوالے نہ دیے جائیں، اور حوالے مستند حوالے نہ دیے جائیں، وہ حوالہ جات جو کہ یہودیوں کے لیے قابل قبول ہو، جب تک آپ وہ حوالے نہیں کوٹ کریں گے تو تب تک
آپ اپنے اس کلیم کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے میں حق بجانب نہیں ٹھہر سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ڈفرنسز کیوں ہیں، کیوں ماڈرن ریبائز اور اینشینٹ ریبائز کے درمیان میں مسیح کی جو آمد ہے، مسیح بن یوسف اور مسیح بن داؤد، کیوں جو ان سے ان میں اختلاف ہے. جو اینشینٹ ریبائز ہیں وہ اس مخمزے کا میں مبتلا ہیں، کیونکہ جب وہ کلام خدا کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو پیشن گوئی ہیں مسیح کے متعلق، ایسا ممکن نہیں ہے کہ تمام پیشن گوئیاں ایک ہی وقت میں پوری ہو رہی ہوں. تو اگر ایک ہی وقت میں مسیح کے متعلق تمام پیشن گوئیاں پوری نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وقت دو مختلف ہیں، اور اگر دو مختلف وقت ہیں تو پھر ان کا حل یہ ہے کہ مسیح کی آمدیں دو ہیں، کیونکہ ایسا پاسبل نہیں ہو سکتا کہ جب پیشن گوئیاں مسیح کے آمد کے متعلق وہ میل نہیں کھا پا رہی، ڈائیکوٹمی ہے ان کے اندر، وقت کا جو ہے وہ مختلف تعین ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی دو آمدیں ہیں، ایک وقت کے اوپر ہے اور دوسرے وقت کے اوپر ہے. اور اس کا حل جو ہے انہوں نے یوں نکالا کہ انہوں نے کہا کہ پہلا جو آمد ہے مسیح کی وہ مسیح بن یوسف کے طور پر ہے، جو کہ ایز اے سرونٹ کے طور پر ہے، جو کہ ایز اے برے کے طور پر ہے جس کو قربان کیا جائے گا. اور دوسری آمد جو بیان ہو رہی ہے وہ مسیح بن داؤد کے طور پر ہے، ایز اے کنگ کے طور پہ، جہاں پہ 1000 سالہ بادشاہت کا ذکر ہوگا. اب یہی علماء جو ان سے ہیں، یہ نہیں کہ جن علماء نے جو اینشینٹ علماء ہیں انہوں نے یہ بیان کیا مسیح کی دو آمدوں کو، ان کی حرب ان کے درمیان میں بھی جو ان سے کچھ اختلافات موجود ہیں، لیکن جو الٹیمیٹ انہوں نے رزلٹ نکالا، جو قدیم ریبائز تھے، ہم انہیں دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، انہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ پرانے عہد نامے کے اندر مسیح کی دو آمدوں کا ذکر ہے، کیونکہ تمام پیشن گوئیاں جو کلام خدا کے اندر تناخ، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، ہیبرو میں تناخ کہتے ہیں، اس کے اندر جو مسیح کے متعلق پیشن گوئی ہیں ان کی آمد کے متعلق، وہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دو آمدوں کا ذکر ہے، مسیح بن یوسف اور مسیح بن داؤد. اور اسی وجہ سے جو ان سے یہ دونوں آمدیں جو ان سی ہیں، یہ نئے عہد نامے کے اندر بھی جو ان سے اس کے ساتھ میل کھاتی ہیں. اب جو ماڈرن جیوز ہیں، ہم دیکھیں گے یہ کیوں جو ان سے مسیحت سے دور ہیں، مسیح کی پہلی آمد کو ماننے سے انکاری ہیں. وہ کیا ریزنز ہیں، ہم ان ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے اس میں، لیکن ان ریزنز کو سرسری سرفس کے اوپر دیکھیں گے. اور ان ریزنز میں میرے اور آپ کے جو قدیم مسیحی علماء ہیں اور جو موجودہ مسیحی علماء ہیں ان کا رول نظر آئے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشتر کسی بھی یہودی سے آپ بات کریں جو پرانے عہد نامے پہ یقین رکھتا ہے، وہ مسیح کی پہلی آمد کو قبول کرنے سے انکاری ہے. وہ اس لیے انکاری ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو آج کے موجودہ
मसीही उलमा हैं, उन्होंने कलाम खुदा को मसख किया है और उन्होंने मसख करके ये बयान किया है कि मसाया बिन यूसुफ जो बरे के तौर पर आए, उन्होंने आगे शरीयत को मनसूख किया। और पेशतर कलीसिया जौन सी है, आप उन्हें अगर आप देखें तो पेशतर कलीसिया बड़े धड़ल्ले के साथ, जो ना कलाम को जानती है ना कलाम को सीखना चाहती है, वो ऐसी कलीसिया है जो कि अतवार के अतवार जो उनसे है वो अपना फर्ज समझती है कि जाकर खुदा के हजूरी में हाजिरी दे दें और यही उनके लिए काफी है। और वहां पे वो जो पैगाम सुनते हैं, ना ही वो आके तहकीक करते हैं कि जैसा हमें बताया गया, सुनाया गया, क्या वैसा ही कलाम खुदा बयान करता है कि नहीं। और आज के अगर आप मसीही उलमा, पेशतर और मसीही लोगों से जब आप सवाल करें तो आप बड़े आसानी से वो आपको जवाब देंगे और बड़े वसूख के साथ और बड़ी अथॉरिटी अपनी के साथ ये बयान करेंगे कि शरीयत हमारे लिए अब जो है मौजूद नहीं रही। और जब वो ये कहते हैं कि हमारे लिए शरीयत पर अमल करना अब जो उनसे वो जरूरी नहीं है, तो यह वो रीजन है कि आप यहूदियों को ये कह रहे हैं कि आपकी शरीयत मसाया के आने से मनसूख हो गई। अब अगर मसाया के आने से ये शरीयत मनसूख हो गई है तो इस्तिस्ना 13वां बाब, इस्तिस्ना 18वां बाब के मुताबिक मसाया वो नबी नहीं है जिनका मोशे ने बयान किया। हम इसके बाद इस्तिस्ना 13वें बाब को भी देखेंगे। अगर शरीयत को मसीहों से हटा लिया गया है तो मसीह के बारे में जो पेशन गोई हैं आप उन्हें झुटला देते हैं, क्योंकि आपकी बेस ही जौन सी है, जो नए अहनामा की बुनियाद ही जौन सी है, वो पुराने अहनामे पे मुश्तमिल है। मसाया जिसको मसीही लोग मानते हैं, जो मेरा और आपका निजात दहिंदे हैं, वो खुद अपने मुंह से मत्ती रसूल की मार्फत, मत्तायस रसूल की मार्फत यूं बयान फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। वो कहते हैं कि मैं मनसूख करने नहीं आया, मैं तो जिस तरह शरीयत में लिखा हुआ है मैं तो उसके मुताबिक, उसके कहे के मुताबिक, क्योंकि खुदा कदूस का कलाम है, उसको जो है पूरा कर रहा हूं। और आज के जो उलमा है, जो मसीही उलमा है, क्योंकि वो सेमिनरीज के तरबियत याफ्ता है, उन हदूद के पाबंद हैं, उन जंजीरों के कैदी हैं, वो उन्होंने कलीसिया को भी उन्हीं जंजीरों में, उन्हीं हदूद में जकड़ रखा। और कलीसिया भी जिसके पास वक्त नहीं है, ज़बूर 91 कहता है कि क्योंकि उन्होंने मेरे से दिल लगाया है इसलिए मैं उन्हें छुड़ाऊंगा और उन्हें सरफराजी बख्शूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम पहचाना है। आज कलीसिया के पास दिल लगाने के लिए वक्त नहीं है। वो झूठे होठों से आई लव यू पुकारते हैं। उनके पास वक्त नहीं है कि एक हफ्ते के दौरान वो कलाम खुदा की तरफ रुजू करें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा वो रोज बमुश्किल से कलाम खुदा को देते हैं और फिर अपनी अथॉरिटी बयान करते हैं कि शरीयत जौन सी है वो हमारे ऊपर लागू नहीं रही। मसाया ही को जौन सा वो जुटला देते हैं, जो कहते हैं कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया। कलाम खुदा
में हम जो सीखना चाह रहे हैं वो यशायाह नबी का 53वां बाब सीखना चाह रहे हैं, जो जैसे कि हमने सीखा कि आज के मसीही उलमा, पादरी हजरात, कैथलिक कलीसिया, उनके फादर हजरात, ये सब जौन से हैं, इन्होंने अपनी अपनी हदूद, अपनी अपनी जंजीरें के मुताबिक कलाम खुदा को बयान किया और कलीसिया को उन हदूद और उन जंजीरों में जकड़ा। और ये वो रीजंस हैं जिसके बिना पर जो मॉडर्न ज्यूज रेबाइज हैं वो सख्त नाला हैं, क्योंकि जब आप उन्हें कहते हैं कि आपकी किताब ही मनसूख हो गई, आपकी शरीयत ही मनसूख हो गई, मेरे मसाया ने आके उसे मनसूख कर दिया, तो आपके मसाया को मानने से वो इनकार कर देते हैं। क्योंकि मसाया के मुतालिक जो वो जानते हैं, जैसा किताब में लिखा है, जैसा तनाख ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर वो मसाया ही नहीं है जिसने आकर शरीयत को मनसूख किया। और मसाया अपने मुंह से ये सादर फरमाते हैं कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया। हम कलाम खुदा के अंदर ज़करिया 12वें बाब में आएंगे और उसकी 10वीं आयत को देखेंगे। ज़करिया 12वां बाब और उसकी 10वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो ये यहां पर आपको मसाया बिन यूसुफ, जो कदीम यहूदी उलमा है, जो एंशियंट रेबाइज हैं, वो इसको किस तरीके से बयान करते हैं। ज़करिया 12वां बाब उसकी 10वीं आयत। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। यह हवा खुदाए कदूस फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा। ये फजल नए अहदनामे में सिर्फ मौजूद नहीं है, पुराने अहदनामे में भी मौजूद है। फजल की रूह पुराने अहदनामे में ज़करिया 12वें बाब 10वीं आयत में बयान हो रही है। और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे। ज़करिया रूह कुदस की कुदरत से फरमाता है कि खुदा कदूस बयान कर रहे हैं, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा, और वो उस पर जिसको उन्होंने छेदा है नजर करेंगे और उसके लिए मातम करेंगे, जैसा कोई अपने इकलौते के लिए करता है, और उसके लिए तल्ख काम होंगे जैसे कोई अपने पहलौठे के लिए होता है। अब जब यहां पे आप इसकी इंग्लिश हम देखते हैं ज़करिया 12:10 में, तो ज़करिया 12:10 में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो समटाइम्स वो वर्ड एग्जैक्ट उस तरीके से बयान नहीं कर पाता उसका माने। लिखा है कि जिसको उन्होंने छेदा है उस पर वो नजर करेंगे। ज़करिया 12:10 क्या बयान करता है? एंड आई विल पोर आउट, who's gonna pour out? इस यहोवा एलोहीम, खुदाए कदूस जो है वो पोर कर रहे हैं। क्या? फजल की रूह पोर कर रहे हैं। And I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication, so that they will know, so that they will look on me, so that they will look on me whom they have pierced. यहोवा एलोहीम फरमा रहे हैं कि मुझे देखेंगे ये जिनको उन्होंने छेदा है।
कौन है ये यहोवा एलोहीम फरमा रहे हैं कि वो मुझे देखेंगे जिनको उन्होंने छेदा है। ये वो यहोवा है जो जिस्म की सूरत अख्तियार करते हैं, जमीन पर आते हैं और हमारे लिए कफारा अदा करते हैं। And I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication, so that they will look on me, whom they have pierced, and they will mourn from him as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over him like the bitter weeping over a firstborn. Who is that? It's the Messiah bin Yusuf, जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर आते हैं। कलाम खुदा के अंदर हम जो है वो देख रहे हैं कि यशायाह नबी किस तरीके से मसीह बिन यूसुफ जो बड़े हैं उनकी मसलूबियत को बयान फरमाते हैं। हम सीख रहे हैं कि जो एंशिएंट रेबाइस हैं वो कलाम खुदा को बयान करते हैं कि जो मसीह के बारे में जो प्रोफेसीज हैं, जो पेशन गोई हैं, उनके अंदर वक्त को मुख्तलिफ तौर पर बयान किया गया है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि एक ही वक्त में तमाम पेशन गोइयां वो पूरी हो सकें। इसका हल उन्होंने निकाला। उन्होंने कहा कि जब ये दो वक्त हैं तो फिर ये दो आमदें हैं, फिर ये एक आमद नहीं है। पहली आमद मसीह बिन यूसुफ है और दूसरी आमद मसीह बिन दाऊद है। और ज़करिया 12वें बाब उसकी 10वीं आयत में जो आपने भी देखी, जहां पे लिखा है कि वो उसको देखेंगे जिसको उन्होंने छेद किया और उसके लिए मातम करेंगे जैसा इकलौते के लिए किया जाता है, अपने बेटे के लिए किया जाता है। हम इसमें देखेंगे, हम बेबलोनियन तालमूद में जब जाएं, बेबलोनियन तालमूद सुखा 52a में आप आए, बेबलोनियन तालमूद सुखा 52a, याकुल शिमोनी, वहां पे ये रेफरेंस मौजूद है। वो बयान करते हैं कि ये जो 12वां ज़करिया का बाब 10वीं आयत है, मैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बयान कर देता हूं बेबलोनियन तालमूद सुखा 52a से। वहां पे लिखा है, दिस इज मसीह बिन यूसुफ हु इज टू बी स्लेन। वो कहते हैं ये वो मसीहा है जिनको कुर्बान किया जाएगा। तो मसीहा बिन यूसुफ कौन है? ये मसीहा की पहली आमद है। यहां पे आपने देखा यहोवा खुदाए कदूस फरमाते हैं कि मैं अपनी रूह, मैं उस फजल की रूह उन पर डालूंगा और वो उसको देखेंगे। किसको देखेंगे? वो मुझको देखेंगे जिनको उन्होंने छेदा है। आए हम इसको नए अहदनामे के अंदर से देखें कि क्या इस पेशन गोई को नए अहदनामे में रसूल ने बयान किया और कैसे बयान किया। हम यूहन्ना नबी की किताब 19वें बाब में आएंगे। यूहन्ना 19वां बाब और उसकी हम 33वीं आयत से पढ़ेंगे और 37वीं आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना कह दिया जाता है, यूहन्ना नाम नहीं है। आपका कोई इख्तियार नहीं कि आप नबियों और रसूलों के नामों को कलाम खुदा में जो दिए गए हैं उनको अपनी सहूलत, अपनी जुबान की कमजोरी, अपने पादरियों फादरों की ला इल्मी
नासमझी के बायस गलतियों पर गलतियां करते चले जाएं और गुनाह के हकदार ठहरें। जब आप जानबूझकर किसी का नाम बिगाड़ेंगे, खुसूसन ऐसे नाम जो कि मुकद्दस नाम है, आप गुनाह के मरतकब ठहरेंगे। यूहन्ना 19वां बाब 33 से 37 आयत बयान करती है, लेकिन जब उन्होंने यहोवा शाह के पास आकर देखा कि वो मर चुके हैं, तो उनकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उनकी पसली छेदी और फिर उसमें से खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। 36वीं आयत बयान करती है, ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो। कौन सा नविश्ता? कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। ये कहां पर लिखा है? हमें अभी हम देखेंगे कि मसाया बिन यूसुफ सलीब पर कफारा अदा कर चुके हैं। उनकी पसली को छेदा जा रहा है, खून और पानी बह निकलता है, और यूहन्ना नबी बयान कर रहा है कि ये इसलिए हुआ कि वो नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। 37वीं आयत बयान करती है, फिर एक और नविश्ता कहता है, एक और नविश्ता है मसाया के बारे में। ये पेशन गोई है मसाया के बारे में। किस मसाया के बारे में? वो मसाया जो मसाया बिन यूसुफ है, जो बरा है और जो हमारे कफारे के लिए इस जमीन पर आते हैं। उनकी पहली आमद उनको बयान किया जा रहा है। यूहन्ना 19वां बाब 37 बयान करती है, फिर एक और नविश्ता कहता है कि जिससे उन्होंने छेदा उस पर नजर करेंगे। यूहन्ना नबी 37वें आयत में 19वें बाब की जकराया 12वें बाब 10वीं आयत को बयान करता है। और जो हड्डी का बयान है कि हड्डी तोड़ी ना जाएगी, आप जबूर की किताब 34वें बाब की 20वीं आयत में आए तो वहां पे कलाम खुदा आपको यूं बयान करता है। जबूर 34 उसका 20वीं आयत, वो उनकी सब हड्डियों को महफूज रखते हैं, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। यूहन्ना नबी 19वें बाब की 36वीं आयत में जिसको बयान कर रहा है, जिस नविश्ते को, जिस प्रोफेसी को बयान कर रहा है कि उनकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी, वो ज़बूर 34वें बाब की 20वीं आयत को बयान करता है। और जो 19वें बाब की 37वीं आयत में जहां पे लिखा है कि जिसको उन्होंने छेदा है उस पर निगाह करेंगे, वो जकराया 12वें बाब की 10वीं आयत को बयान करता है। कलाम खुदा से हम सीखते हैं कि पुराने अहदनामे में जो मसाया की पेशन गोई है, उनकी आमद के मुतालिक, चाहे वो पहली आमद है चाहे दूसरी आमद है, उन दोनों को नए अहदनामे के अंदर रूह की हिदायत से बयान किया गया है। हम जो उनसे यहां पर जो सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं कि क्या यशायाह नबी का 53वां बाब महज जो मॉडर्न यहूदी रेबाइस हैं, जो मॉडर्न यहूदी उलमा हैं, उनके कहे के मुताबिक सिर्फ बनी इस्राएल के मुतालिक है, या यशायाह नबी का 53वां बाब मसाया को भी बयान करता है। हम आज ना सिर्फ यहूदी उलमा बल्कि आज बहुत सारे जो अपने आप को मसीही कहलवाते हैं, वो मसीह की पहली आमद को मुस्तरद करते हैं। एंटी मसीहन्स हैं, वो एंटी मसायास हैं। वो हम जो उनसे वो ये कहते हैं
वो यहूदी उलमा के साथ मिलकर कि यशायाह नबी का 53वां बाब महज इस्राएल को बयान करता है और ये इसका मसाए के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। हम जो सीखेंगे इसके अंदर कि क्या उनका ये दावा दुरुस्त है या यशायाह नबी 53वां बाब बनी इस्राएल और मसाया दोनों को बयान फरमाता है। हम इसके लिए जब यहूदी ये दावा करते हैं तो उनकी जो तालमूद है, तालमूद बेसिकली जो सी है ये ज्यूश कमेंट्रीज पे मुश्तमिल है। जो तनाख है, जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उसकी जो कमेंट्रीज हैं, जो उसका बयान है, उसको तालमूद कहते हैं। हम तालमूद के अंदर देखेंगे कि तालमूद को मॉडर्न और एंशियंट ही जो यहूदी उलमा हैं उन्होंने किस तरह यशायाह नबी 53 को बयान किया है। हम इसके लिए यशायाह नबी के 53वें बाब को देखने के लिए हम तालमूद की एक किताब, इसके हिस्से हैं, इसके वर्जन्स हैं, जिस तरह बाइबल के अंदर जो है वो आपको 39 किताबें पुराने अहदनामे में और 27 किताबें नए अहदनामे में मिलती हैं, 66 टोटल मिलती हैं। इसी तरह जो है तालमूद के अंदर जो है वो उसके हिस्से हैं। हम तालमूद को यशायाह नबी के 53वें बाब से जब सीखते हैं कि यहूदी उलमा की क्या राय है, तो वहां पे हमें सनहेड्रिन 98b, ये तालमूद एक मुस्तनद किताब है तमाम यहूदियों के लिए, वो एक अहमियत की हामिल है। इसके सनहेड्रिन 98b के अंदर आप जब जाते हैं तो वहां पे आपको, जो मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ूंगा उसका उर्दू मतलब बता देता हूं, वहां पे यूं मज़कूर है, द मसाया, व्हाट इज हिज नेम, द rabbis say the leprous one, those of the house of Rabbi say the sick one, and it is said, surely he hath borne our sickness. He hath borne our sickness. ये सनहेड्रिन 98b के अंदर मसाया के मुतालिक लिखा हुआ है। ये रेबाइस का कहना है कि उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। ये कब लेंगे वो? मसाया बिन दाऊद तो बादशाहत करने आ रहे हैं, और इसीलिए कदीम जो रेबाइस हैं, जो एंशिएंट रेबाइस हैं, वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि मसाया के बारे में जो पेशन गोई है वो एक ही वक्त में पूरी हो। ये दो वक्तों को बयान है, और इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये दो मसायों की आमद है। एक मसाया बिन यूसुफ एज अ सर्वेंट, एज अ लैम, और दूसरे मसाया बिन दाऊद एज अ किंग। अब ये जो उनसा हमने जो इसमें पढ़ा है सनहेड्रिन 98b, इसके अंदर मैं इसको फिर से जो है थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगा। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं यशायाह नबी की किताब 53वां बाब, उसके मुतालिक तालमूद सनहेड्रिन 98b यूं बयान करती है, द मसाया, व्हाट इज हिज नेम, द rabbis say the leprous one, these of the house of Rabbi। अब यहां पे जब आप इसको देखते हैं तो यहां पे वो बता रहा है कि ये कौन है। यहां पे जब इसको आप देखते हैं तो वहां पे वो कह रहा है कि Rabbi in this passage is the title of Rabbi Yudah the saint, the redactor of the Mishnah। वो कहता है ये रेबाई है जो ये बयान कर रहा है, और ये तालमूद के अंदर लिखा हुआ है। He wrote at about 180 CE। ये दूसरी सदी ईस्वी का रेबाई है। ये कोई आज का रेबाई नहीं है जो ये बयान कर रहा है। उसका नाम भी दिया गया और यह भी बता दिया गया कि वो किस सदी में ये मौजूद था रेबाई, और ये तालमूद के अंदर सनहेड्रिन 98b के अंदर मौजूद है।
मसाया के मुतालिक कि वो हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लेंगे। इसी तरह जब आप इसके आगे चलते हैं, आगे लिखा है द सिक वन एज इट इज सेड श्योरली ही हैथ बोर्न आवर सिकनेस, कि यकीनी तौर पर वो हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लेंगे। ये जोन से कौन बयान कर रहा है? जब इसको आप देखते हैं, वो लिखता है कि तालमुद सेंड्रिन Tractate 98b quoted in the 53rd chapter of Isaiah according to the Jewish interpreter page 7, और ये ट्रांसलेशन बाय एस.आर. ड्राइवर एंड ए.डी. न्यू बेयोर। कहते हैं ये जो 98b है, ये जो हमने ट्रांसलेशन की है, ये इस बंदे ने ट्रांसलेशन की है, और ये सेंड्रिन 98b से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये कहीं बाहर से हम चीजें नहीं ले रहे, ये तालमुद ही से हम बयान कर रहे हैं, और बयान करने वाले का जिसने ट्रांसलेट किया उसका भी आपको बता दिया गया। इसके अलावा हम एक और जगह पे आते हैं। हम आते हैं, एक और रेबाय हैं, रेबाय एलियाहू दी विदास, कदीम जौन से हैं रेबाय हैं। ये बयान फरमाते हैं, रेबाय एलियाहू दी विदास, ये 1518 से 1587 में हेब्रोन के इलाके में जो है वो पैदा हुए। ये 16वीं सदी के जो उनसे रेबाए हैं, ये कोई 19वीं सदी के रेबाए, 21वीं सदी के रेबाए नहीं है। ये बयान फरमाते हैं, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन बयान कर रहा हूं, बट ही वॉज वुंडेड, वो बयान कर रहे हैं कि वो यकीनन हमारे लिए घायल हुए। वो कहते हैं इसका मतलब ये है, मीनिंग दैट सिंस द मसाया बियर्स आर इनक्विटीज, क्योंकि उन्होंने हमारे गुनाह अपने ऊपर लिए, विच प्रोड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ हिज बीइंग ब्रूज्ड, जब वो गुनाह अपने ऊपर लेते हैं तो सलीब के ऊपर जा रहे हैं, वो गुनाह अपने ऊपर लेकर सलीबी मौत जो है गुमारा करने जा रहे हैं, और सलीबी मौत के दौरान उन पर आफतें ढाई जाती हैं, उन्हें मुक्के मारे जाते हैं, उन्हें कोड़े मारे जाते हैं, उन्हें थूका जाता है, उन्हें धक्के दिए जाते हैं। It follows that whosoever will not admit that Messiah thus suffers for our iniquities must endure and suffer for them himself। वो कहता है कि जो ये यकीन नहीं करता कि मसाया ने मेरे गुनाह अपने ऊपर ले लिए, वो अपने गुनाह का खुद जिम्मेदार ठहरेगा। ये रेबाय एलियाहू दी विदास जो 16वीं सदी के रेबाय फरमाते हैं मसाया बिन यूसुफ के मुतालिक। हम जो यहां पे सीखना चाह रहे हैं, आज हम 53वें बाब पे नहीं आएंगे, क्योंकि जब हम 53वें बाब की आयत बाय आयत हम देखेंगे, और ये बड़ा जरूरी है। और आज तक मैंने कभी किसी चर्च के अंदर, जो मसीही चर्च है, उसमें 53वें बाब को सिर्फ आयतें कोड करते देखा है, 53वें बाब को सिखाते, 53वें बाब को बयान करते नहीं पाया। क्यों जरूरी है ये हमारे लिए? ये सीखना क्यों जरूरी है? सवाल तो ये है, नहीं सिखाया गया, इसे सीखना क्यों जरूरी है? खुदाए कदूस क्यों हमें आज ये सिखाना चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि जाओ उस भेद को मालूम करो जो मेरे बारे में नबियों ने रूह की मार्फत कलम बंद किया। तुमसे मार्फत की कुंजी को छुपा लिया गया। आओ मेरे पास, मैं आज इस मार्फत की कुंजी को तुम्हारे लिए खोलता हूं। यह हम इसलिए सीखना चाह रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं कि मसीही उलमा कदीम और मौजूदा
जिन्होंने इस मार्फत की कुंजी को हमसे छुपा लिया, जिन्होंने खुदाए कदूस के भेदों को हमसे दूर रखा, क्योंकि वो खुद सेमिनरीज के, हदूद के तालीम याफ्ता, कोर्स की किताबों के तालीम याफ्ता थे। और मसीही कलीसिया उन्हीं कोर्स की किताबों के ताबे रहते हुए उन रवायात के ऊपर चलती चली गई, क्योंकि वो कलाम से बैरावर होने की जुस्तजू ही ना कर सके। क्यों जरूरी है हमें यह सीखना? ताकि हम यहूदियों से, जिनमें नजात है, जो खुदा के आंख की पुतली है, बनी इस्राइल, यहूदा के घराने से मसाए आए हैं, उन तक इस पैगाम को पहुंचा सकें, ताकि जब कभी आप किसी एंटी मसाया या किसी यहूदी के साथ आपका जो है वो टाकरा हो और उससे यशिया नबी के 53वें बाब को आपको उसके साथ मुकालमा करना पड़ जाए, तो आप उसे बता सकें ये है मेरा मसाया जो मेरे और तेरे लिए इस दुनिया में आया। इसलिए जरूरी है हम एक और जो उनसे जो रेबाई हैं, जो आज के यहूदी हैं, जिस तरह मसीहों ने अपने अपने फादरों, कैथोलिक कलीसिया के लोग और दूसरी कलीसिया के पादरियों के तालीमात को, ना के कलाम को कबूल किया, मिशनों की तालीमात को कबूल किया, इसी तरीके से जो यहूदी लोग हैं वो भी हमसे ज्यादा दूर नहीं, वो भी नाम ही के जो उनसे हैं वो खुदाए कदूस के पैरोकार हैं। उन्होंने भी बगैर सीखे, बगैर पढ़े, बगैर समझे, उन्होंने भी अपने अपने रेबाइज की हदूद के मुताबिक उन्होंने तालमूद को पढ़ना गवारा नहीं किया। उन्होंने ये सीखना गवारा नहीं किया कि तालमूद में क्यों जो पुराने रेबाइस हैं वो तो मसाया की 2 आमदें बयान करते हैं, वो तो मसाया बिन यूसुफ, मसाया बिन दाऊद को बयान करते हैं, वो तो मसाया बिन यूसुफ को कहते हैं कि ये वो हैं जो हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए आएंगे। और आपने देखा एलियाहू रबी जो 16वीं सदी के रबी हैं, वो फरमाते हैं, वो कहते हैं जो ये कबूल नहीं करता वो अपने गुनाह का फिर खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि अगर आपके गुनाह उन्होंने अपने ऊपर उठाकर कुर्बानी नहीं दी तो फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज के मॉडर्न उम्मा भी, जो मॉडर्न रेबाइस हैं, वो एक रेबाई की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम राशि है, और राशि भी उनका पूरा एक्चुअल नेम नहीं है। राशि से वो मशहूर है। आज के एंटी जो क्रिश्चियंस हैं, एंटी मसीहन है, उनसे पूछ लिया जाए तो उनको भी शायद ये इलम नहीं होगा, उन्हें राशि नाम इलम होगा। राशि का नाम बेसिकली जो एक्चुअल उनका नेम है वो शलोमो यित्ज़हाकी है। शलोमो यित्ज़हाकी, और ये फ्रांस में पैदा हुए। ये 22 फरवरी 1040 में पैदा हुए। हम इसमें भी देखेंगे कि राशि क्यों मुखालिफ है, क्या रीजंस है। राशि को फॉलो किया जाता है।
جو ماڈرن جوز ہیں. اور راشی جو ان سے ہیں انہوں نے 11ویں صدی میں کیونکہ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر جو ان سے پہلے کی تالمود میں تعلیمات تھیں، جو تناخ کے بارے میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں کمنٹریز اینشین ریبائز کی تھیں، جان بوجھ کر انٹینشنلی انہوں نے چینج کیا. بہت سارے جو علماء ہیں، یہودی علماء، ریبائز، میمونیڈس کہا جاتا ہے، کرسپن کہا جاتا ہے انہیں، یہ لوگ ہیں جو تناخ کی کمنٹریز جنہوں نے کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ یشیا 53واں باب مسیانک ہے، مسایہ کے متعلق ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ راشی جو ہے اس نے جان بوجھ کر اس کو تبدیل کیا ہے، کیونکہ وہ مسیحوں سے سخت نفرت رکھتا تھا اور وہ علانیہ اس کا اظہار کرتا تھا، اور اس نے جان بوجھ کر اپنے سے پہلے کے ریبائز کی تعلیمات کو اگنور کیا. اس کی ریزنز ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں دیکھا، اس کی ریزنز یہ ہیں کہ جس طرح ایک یہودی جو ہے آج جیسے اسے سکھایا جاتا ہے، جیسے اسے بتایا جاتا ہے، نہ وہ گھر جا کر اس کو وقت ہے کہ وہ کلام خدا کی طرف رجوع کرے، نہ اس کے پاس وقت ہے کہ وہ تالمود کی سٹڈی کرے، نہ اس کے پاس وقت ہے کہ وہ قدیم ریبائز کو، ان کی کمنٹریز کو پڑھے. اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، جو نام کے مسیحا کے شاگرد بنتے ہیں، اپنے آپ کو مسیح کے ایلچی کہلوانا پسند کرتے ہیں، نہ ان کے پاس وقت ہے کہ وہ کلام خدا کو پڑھیں، نہ ان کے پاس وقت ہے کہ وہ ان مشنوں کی حدود سے باہر نکلیں، نہ ان کے پاس وقت ہے کہ ان زنجیروں کو توڑیں، ان انسانی روایات کو چھوڑیں. اور جب یہ دونوں ایکسٹریمز اپنے اپنے سکھائے ہوئے طریقوں پر جب تک قائم رہیں گی، یہ ایک دوسرے کی مخالف رہیں گی، کیونکہ جب تک یہ ایک دوسرے کی مخالف رہیں گے تب تک یہ نہ کلام خدا کو جان پائیں گے، نہ یہ اس برکت کو حاصل کر پائیں گے جو کلام خدا ان میں لکھی ہے. جو آج کے مسیحی ہیں انہوں نے مسیحا کا ایک نیا کنسپٹ پیش کر دیا. انہوں نے پیش کر دیا کہ مسیحا آئے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کیا اور شریعت کو ہمارے اوپر سے موقوف کر دیا. آج یہ وہ تعلیم ہے جو چرچز کے اندر دی جا رہی ہے، جو اپنے آپ کو مسیحی علماء کہتے ہیں اور ہیں نہیں، جو اپنے آپ کو
फादर कहते हैं और है नहीं, जो अपने आप को पादरी हजरात कहते हैं और है नहीं, वो जंजीरों से बंधे हुए हदूद की कैद में रहकर जिस तरीके से कोर्स की किताबों से पढ़कर सेमिनरी में कोर्स करवाया जाता है, और वो ये कहते हैं कि जिसने सेमिनरी को नहीं पढ़ा उसने कलाम खुदा को नहीं सीखा। मैं आपसे कहता हूं जो सेमिनरी में पढ़ता है वो कलाम खुदा को नहीं सीखता, वो सिर्फ उस सेमिनरी की कोर्स की किताबों को फॉलो करता है, वो सिर्फ उस सिलेबस को फॉलो करता है। और पास और फेल का म्यार क्या है? वहां पर कितने परसेंट वाला पास करार पाता है और कितने परसेंट वाला जब वो पास करार पा जाता है तो उसे पादरी का ओहदा दे दिया जाता है कि जा और जाकर अब तूने 33 नंबर लिए या 35 नंबर लिए या 40 नंबर लिए, जा जा तू पास है और जा और जाकर कलाम को अब तू सिखा। शर्म का मुकाम है इन सेमिनरीज के लिए जो पैसे की खातर मिशनों की हदूद के अंदर, उनकी कयूद के अंदर उन जंजीरों से अपने आप को बांधे बैठे हैं। और वो कहते हैं कि मसाया ने शरीयत को माकूफ कर दिया। मसाया कहते हैं कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं आया। वो कहते हैं कि जो कोई एक शोशा या एक नुक्ता भी शरीयत की किताब से हटाएगा और ऐसा सिखाएगा वो आसमान की बादशाही में दाखिल ना किया जाएगा। जब यहूदी ये देखते हैं, वो देखते हैं कि ये मसीही उलमा ने शरीयत को रद्द कर दिया है, मनसूख कर दिया है, और वो ये कहते हैं कि मसाया ने किया है, वो कहते हैं हम आपके मसाया को नहीं मानते, हमारा तो मसाया कलाम के मुताबिक ऐसा कर ही नहीं सकेगा, और अगर वो है जिसने ये किया है तो वो मसाया ही नहीं है, और इसलिए वो मसाया बिन यूसुफ को नहीं मानते। ये है वो दीवार जो दोनों के दरमियान में मौजूद है। एक तरफ मसीहों ने शरीयत को माकूफ समझा, यहूदियों ने मसीह को माकूफ कर दिया। राशि ऐसे नहीं एंटी मसाया हो गया, उसने कहा मैं इस मसाया को मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं कि ये मसाया है, क्योंकि आपने ये कह दिया कि इसने शरीयत मनसूख की। मैं आपसे कहता हूं मैं इस मसाया को मनसूख करता हूं। इसलिए हमें जरूरी है कि इस मार्फत की कुंजी को जाने, सीखें, ताकि हम कलाम खुदा के मुताबिक उस भेद को, उस मार्फत को हासिल कर सकें जो कलाम खुदा सिखाना चाहता है। हम आज इसके इब्तिदाइया में ही रहेंगे और नेक्स्ट टाइम से हम यशायाह नबी को आयत ब आयत कलाम खुदा से उस मार्फत की कुंजी को सीखेंगे जिसको खुदा ने सिखाने का खुद वादा किया है। खुदा कुदूस हर उस शख्स को जो कलाम खुदा को जानना चाहता है अपनी बरकतों पर बरकतें से नवाजें। आमीन।